what we are doing is we are again talking about titles, accounts, increase, decrease. Okay, here we will come to the one important point, that is how to analyze your accounting equation. फिर वो उसको एक बॉक्स बनाते हैं, but you must remember the titles. What are the titles? ठीक है. If cash increases, what will you do? What effect will come to the cash? Will it be debited or will it be credited? Debited. Debit. Okay. If liability decreases, Credit. sorry, Credit. debit. Oh, And you have to speak a little bit loudly so that I can hear you properly, because I don't have that, headphone and etc. Okay. sir, blank answer है B. Correct answer is B. Right. Right. Actually, this is your kind of revision, because I am coming to the very, very important exercise. But later on, first, I want to make sure that you remember all these things. Then we will come into the effects of accounting equation. And it is your usually question number 1 in your CIE, and it carries 15, 16 marks. 15, 16 marks, because there are certain boxes given to you and you have to write increase, decrease in the boxes. And it depends on the boxes. If there are 10 boxes, you will get 10 marks. If there are 15 boxes, you will get 15 marks. So we will come to that part later on. But first, let me make sure that you remember all these things. Yes. What is your answer? एक मिनट sir. Furniture is dash. What do you see? Sir, current Your asset. current asset. That is A. It's wrong. Sir, B भी लग रहा है. B लग रहा है क्योंकि B, fixed B. और लग रहा है ना? non-current asset. B is correct answer. B is your fixed or non-current. They are called non-current also. So fixed or non-current is your furniture. Okay. So B is your correct answer.
Yes. एक मिनट, increases Increase in capital. asset is डेबिटेड और क्रेडिटेड, नो इफेक्ट, नन ऑफ। सर वो भी उसमें ही आएगा अपना डेबिट में, डीआर में। क्यों? in capital, liability, and revenues. Capital, liabilities, and revenues. When these three accounts are increased, they are credited. And rest of two, assets and expenses. Assets and expenses. When they increase, they are debited. Here we are talking about capital, right? So it's so far it's going 50-50. Yes. What is the main purpose of accounting? Keep the records and analyzing the record. Keep the records, analyze the records, decision making, or classifying the records. Decision making. Decision making. This is the part of your accounting. Rest of these three, these two, and this is a part of Book. bookkeeping. This is the difference between your accounting and bookkeeping. Bookkeeping cannot make the decision, right? They just keep the records. That's it. Okay, these all three things are records, or you as Americans say records, but that's it. But with these records, we can make decisions while we are doing the accounting. Okay, and that you will do in uh, O3, and that question carries more than 22 to 25 marks. There are certain formulas you have to remember. You have to run by heart those formulas. चलेंगे. अब देखें लास्ट टाइम हम आपको जो है वो इंक्रीज डिक्रीज पर लेकर आए थे, उससे पहले भी लेकर आए थे. फिर हमने कुछ आपको ट्रांजैक्शन समझाए क्या हाउ दे इफेक्ट, कैसे इंक्रीज करेंगे कैसे डिक्रीज करेंगे. अब हम ये कर रहे हैं कि वी आर मेकिंग वेरी ह्यूज बॉक्स. उसके अंदर 3-4 things will be given to you. ठीक है, transactions given to you, और आपने बताना होगा कि what are the effects of these transactions
on our accounting equation, right? So let me write what we are going to do today is effects on accounting equation. लास्ट टाइम आपको ऐसे करके दिया था कि एसेट्स आर इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, और आप लाइबिलिटी को यहाँ लेकर आ जाए प्लस कैपिटल कर दो। तो आपने कहा था कि दीज टू थिंग्स आर, ठीक है, इक्वल टू दिस, एंड आई टोल्ड यू कि ये आपकी जो है सोर्सेस होती हैं, एंड व्हेन दे कंबाइन तो फिर आपके पास आता है रिसोर्स। ये दो चीजें होती हैं आपके पास, एंड आई टोल्ड यू मेनी मेनी टाइम्स कि देयर इज नॉट any kind of business which has 100% owner's equity. कभी ऐसा नहीं होता. He has to take a kind of loan, debt, उसको लेना होता है, तो आपकी वो लाइबिलिटी बन जाती है, ठीक है। सर लोग कंपनी की शेयर्स भी तो खरीदते हैं, कंपनी वो को ऑन करने के नहीं, लिए। वो कंपनी होती है तो कंपनी का जो शेयर लिया जाता है वो लाइबिलिटी नहीं है। कंपनी का जो शेयर लिया जाता है तो आप शेयर होल्डर बन जाते हैं, और फिर एट द एंड ऑफ द ईयर वट एवर कंपनी अर्न्स, जो नेट प्रॉफिट होता है आफ्टर एक्सपेंसेस, आफ्टर टैक्स डिडक्शन, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, वो सब कुछ देने के बाद आप उसका एप्रोप्रिएशन करते हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है कि कहीं आप कुछ इन्वेस्टमेंट एलोकेट करते हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती है कि डिफेंस में इतना लगाना है, एजुकेशन में इतना लगाना है, हेल्थ में इतना लगाना है। तो आप कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें ये करते हैं कि पहले कंपनी जो है, जिससे अभी बात हो रही थी लाइबिलिटी की, जो बड़ा ह्यूज लोन लिया है उसकी को इंस्टॉलमेंट है वो पे करेंगे, उसका जो इंटरेस्ट है वो पे करेंगे, फिर जो बचेगा तो फिर यू विल सेव योर कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि उसका थोड़ा सा पैसा किसी जो है जगह पे आप जो है एलोकेट कर देंगे, ठीक है, वो कहलाते हैं रिजर्व्स। अब वो रिजर्व्स आपने प्लांट एक्सपेंशन किया, बिल्डिंग एक्सपेंशन की, तो उसके अंदर आपने वो पैसे निकाल दिए। अब जो बचेगा उसमें फिर देर आर टू काइंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं, एक प्रेफरेंस होते हैं और एक ऑर्डिनरी होता है। तो हम पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देते हैं, फिर जो बचता है तो फिर वो जो है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को आता है, जो हम आप होते हैं जनरल पब्लिक, उनको मिलता है। तो वो काफी दूर की बात है, लेकिन वो अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं है, अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशंस में क्या होता है कि देयर आर थ्री थिंग्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, ठीक है। अब हमने देखना ये है कि जो एक ट्रांजैक्शन आपको मिल रहा है, जो एक एक्शन हो रहा है, एक एक्टिविटी हो रही है बिजनेस में, उसका इन तीन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। लेट मी राइट इट ऑन द बोर्ड ताकि बात समझ आ जाएगी। ये पॉइंट नजर आ रहा है आपको? कैन यू सी दिस पॉइंट? है जब बात सर ये पॉइंट नजर आ रहा है आपको? जी।
राइट, हमने छोटा कर दिया है। ए मीन्स एसेट, एल मीन्स लाइबिलिटी और सी मीन्स कैपिटल। और यहाँ आई हैव रिटन आइटम। कैन यू सी दिस चार्ट कंप्लीटली? इज इट विजिबल टू यू? यस। ओके, ओके, थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा, ठीक है, रूल्स को थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन को। और आप मुझे बताइए कि दिस एक्टिविटी हैपन्स इन योर बिजनेस, ये हुआ आपके बिजनेस में, कैश इन्वेस्ट हुआ इन द बिजनेस, ठीक है। मुझे बताइए कि एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल को मैं क्या करूंगा? कैन यू हियर? सर यस आपकी जवाब, आवाज बहुत कट कट के आ रही है। अब आ रही है आवाज? आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। ओके, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हो गया होगा। अब बहुत बताइए, कट-कट के आ रही अब सही है? सर शायद मेरा ही नेट कर रहा है ये। हाँ, आपकी तरफ से होगा, मुझे तो एवरीथिंग इज विजिबल। ओके, एक मिनट सर। नजर तो आ रहा है आपको? जी नजर आ रहा है लेकिन वो आवाज तो कट कट के आ रही कैश है। इन्वेस्ट किया हमने बिजनेस में, एसेट हमारा क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, प्लस हो गया। लाइबिलिटी में क्या हो गया? माइनस। माइनस। कैपिटल में क्या हो गया? कैपिटल में प्लस। प्लस प्लस प्लस। यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। नो इफेक्ट। देखें, आपको जब मैंने लास्ट टाइम ट्रांजैक्शंस करवाए थे डेबिट क्रेडिट के, जनरल बनाया था हमने, तो मैंने आपको क्या करवाया था? पहले हमेशा यही एंट्रीज कराई थी कि आपने कैश इन्वेस्ट किया है, तो क्या जनरल एंट्री पास की थी आपने? कुछ याद आ रहा है? जी सर। हाँ, तो क्या जनरल एंट्री पास की थी आपने? आपने क्वेश्चंस भी दिए थे। जी सर। जब ये ट्रांजैक्शन हमने लास्ट टाइम किया था तो आपने क्या जनरल एंट्री पास की थी? जनरल बनाया था लास्ट टाइम। जी सर बनाया था। हाँ, तो क्या जनरल एंट्री पास की आपने थी फिर आपने? उसमें आपने कैश को इंक्रीज किया था, डेबिट किया था, और कैपिटल को भी इंक्रीज किया था। लाइबिलिटी उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हुई थी। ये आप अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं, एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इन तीन में आपने हमें फैक्ट बताने हैं कि व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इन दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन या इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। सेकंड वन देखें, फिर थोड़ा और समझ में आएगा आपके। borrowed bank loan, borrowed bank loan। अब मुझे बताइए क्या होगा? सर एसेट माइनस लायबिलिटी प्लस और अपना कैपिटल भी माइनस। नो, एक आपका सही है। जब आप बैंक लोन लेंगे तो आपकी लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और और एसेट जब माइनस आप हो जाएगा। लोन लेंगे तो दैट अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, into the bank,
बैंक इज योर एसेट, वो हो जाएगा इंक्रीज। कैपिटल इस इन्वॉल्व नहीं हो रहा। कैपिटल देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था, कैपिटल उस वक्त इन्वॉल्व होता है व्हेन यू इन्वेस्ट समथिंग, इधर कैश, व्हीकल, बिल्डिंग, ठीक है। आपका कोई बहुत बड़ी जो है शॉप है, शोरूम है आपका अपना, ठीक है, कोई प्रेमिसेस है, उसको बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया तो कैपिटल इंक्रीज होता है। यहाँ पे यू आर नॉट इन्वेस्टिंग, लाइक नंबर वन में यू इन्वेस्टेड कैश, कैपिटल इंक्रीज हो गया। यहाँ पे यू आर टेकिंग अ लोन फ्रॉम बैंक, और लोन इज योर लाइबिलिटी, इंक्रीज हो गई एज यू सेड, वो सही हो गया। जब पैसा आप लोन लेते हैं तो पैसा इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बैंक वाले आपके अकाउंट में जमा करते हैं, आपके हाथ में नहीं देते। तो अकाउंट में जमा होगा तो आपका बैंक इंक्रीज होगा, बैंक इज एसेट, और नो इफेक्ट होगा आपका कैपिटल में। यू आर डूइंग इट फर्स्ट टाइम बट इट इज अ काइंड ऑफ रिविजन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा दिल से कीजिएगा, अभी आप और समझ लें, फिर मेरी क्लास एंड हो तो रिकॉर्डिंग देखिएगा। मैं इसी क्वेश्चन को आपको जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी पे डालूंगा, उसको आप खुद खुद कीजिएगा। आपने पहले ये मुझे बताइए, लास्ट टाइम जो हमने 2 क्वेश्चंस दिए थे आपको, वो आपने अटेम्प्ट किए जनरल जनरल के? सर वो मैंने किए, मैं भेजना भूल अगर गया। आपने वो किए तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, और अगर नहीं किए हैं तो यस प्रॉब्लम होगा आपको, ठीक है। तो अभी अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, वी आर इन द अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको आप दिल भर के कर लें। इट इज यूजुअली योर क्वेश्चन नंबर 1, और अप टू 15 मार्क्स 16 मार्क्स आप ले सकते हैं इफ यू आर परफेक्ट। नाउ अब आप बताइए क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। फॉर्च्यून इन्वेस्टेड, सर एक तो हमारा एसिड प्लस में होगा, सेकंड, और पहला जो है सर वो प्लस में होगा, एसिड जो है। एसेट प्लस में होगा, सेकंड, लाइबिलिटी माइनस में होगा सर, लाइबिलिटी का भी कोई कोई काम नहीं है। माइनस में होगा, कैपिटल, और कैपिटल प्लस में होगा। कैपिटल प्लस में होगा। देखें, आपने जब नंबर 1 किया था तो नंबर 1 में भी आपने मुझे यही आंसर दिया था, और मैंने कहा था रॉन्ग। यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी इज नॉट इन्वॉल्व, लाइबिलिटी तो आ ही नहीं रही ना। आपने क्या किया है, इन्वेस्ट आपने किया, क्या किया, इन्वेस्ट किया था। इन्वेस्ट। इन्वेस्ट क्या करेगा, आपकी कैपिटल को बढ़ाएगा, आपकी लाइबिलिटी को थोड़ी कम करेगा, ना बढ़ाएगा। अब हम एन ई लिख देते हैं, नो नो इफेक्ट। इफेक्ट, लाइबिलिटी इज नॉट इन्वॉल्व, लाइबिलिटी आ ही नहीं रही। आप तो अपने घर से फर्नीचर लाए, या न्यू ब्रांड फर्नीचर आपने किया, शॉप से उठाया और उसको अपने ऑफिस में, शोरूम में लगा रख दिया। आपके क्लाइंट्स बैठेंगे, कस्टमर्स बैठेंगे, वगैरह वगैरह, आपके गेस्ट्स बैठेंगे, ठीक है। तो लाइबिलिटी इज नॉट इन्वॉल्व, लाइबिलिटी इज नॉट इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर इवेंट। ये जरा सा थोड़ा सा समझ समझ के करें, डोंट रश, ठीक है, टेक योर टाइम, आराम से। वंस अगर आपकी ये बात क्लियर हो गई तो फिर आगे सब हो जाएगा, वरना थोड़ा मसला होगा, जल्दी नहीं करें। अब और देखिएगा, बैंक लोन इज पेड, बैंक लोन इज पेड, बैंक लोन पेड, तो सर ये एसिड में प्लस होगा।
एसेट में प्लस हो जाएगा, और लाइबिलिटी तो नो इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि बैंक लोन तो दे चुके हैं, लाइबिलिटी में नो इफेक्ट पड़ेगा, और कैपिटल बढ़ेगा नहीं सर क्योंकि कैपिटल इसमें भी नो बढ़ेगा प्लस इफेक्ट कर है। दूं? नहीं, बढ़ेगा कैसे सर? हमने तो पेड किया ना, लोन तो दिया है, कैपिटल इसमें कैसे बढ़ेगा? जी, तो इसमें नो 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 इफेक्ट आएगा। कैपिटल में नो इफेक्ट आएगा सर। if you concentrate activity number 2 then you can reach to the answer, परफेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा इफ यू कॉन्सेंट्रेट एक्टिविटी नंबर 2। लाइबिलिटी सर, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया लाइबिलिटी प्लस किस तरह होगी हमारी? देखें, आपने जब लोन बोरो किया था तो वो बैंक में आया था पैसा, बैंक इंक्रीज हो गया, और आपने लोन लिया तो लाइबिलिटी आपकी बढ़ गई, ठीक है, और इफेक्ट कैपिटल के ऊपर कैपिटल कोई को नहीं नहीं पड़ा। पड़ा। अब बिल्कुल आप क्या कर रहे हैं, उसके रिवर्स जा रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं, आप लाइबिलिटी को पे कर रहे हैं, आप लाइबिलिटी को पे कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी आपकी क्या हो गई, कम हो गई ना। देखिए, पहले आपने लिया तो बढ़ गई, आज आपने पे किया तो आप खत्म। मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जवाब, ये आप असाइनमेंट कल करिएगा, तो जब तक कल नहीं आएगी ये आपकी एक जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप उसको कल आ गई, करके दिखा दिया, तो वो क्या हो गया, आपकी लाइबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, बढ़ गई? कम हो गई। कम हो गई, ठीक है। जब आपने पेमेंट की, जब आप पेमेंट करेंगे तो इधर या तो आपने कैश पे किया होगा या फिर बैंक से पेमेंट की होगी, तो कैश एंड बैंक दे बोथ रिलेट टू योर एसेट, और वो भी कम हो गया। और सिमिलरली जब इस वाली एक्टिविटी में आपका नो इफेक्ट था कैपिटल में, तो इस दफा भी आपका नो इफेक्ट आया। वो जो मैंने आपको ट्रांजैक्शंस कराए थे और उसमें मैंने बार बार सर्किल करके प्लस माइनस की साइन डाल रहा था, वो रीजन ही यही था कि प्लस जो है दैट इज द इंडिकेशन साइन ऑफ इंक्रीज एंड माइनस मीन साइन ऑफ डिक्रीज। तो वो आपको कराने का मकसद ही यही था। आप रिकॉर्डिंग्स को दोबारा देखिएगा तो फिर आपकी और समझ में आ जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल वाइस वर्सा है, वाइस वर्सा है। इन टू में आपने बोरो किया, आपके बैंक में पैसा आ गया, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। आप अपने अब्बू से, अपने भाई से, अपनी बहन से कहते हैं कि ऐसा करें, मेरी पॉकेट मनी खत्म हो गई है, आप जो है मुझे 50 रुपये उधार दे दें, फिर जब मेरी पॉकेट मनी आएगी तो मैं वो 50 रुपीज़ आपको रिफंड कर दूंगा। तो जब आपने 50 रुपीज़ लिए अपने अब्बू से, भाई से, तो उस वक्त आपके लिए अकाउंटिंग में वो क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गई। लाइबिलिटी आपकी बढ़ गई, आपने फ्यूचर में उसको पे करना है। फिर जब आपकी पॉकेट मनी आए या कहीं और से आपके पास पैसे आ गए, ठीक है, दादी नानी खाला पुप्पो ने दे दिया आपको, तो आपने वो 50 रुपीज़ जो है वो रिटर्न कर दिए अपने अब्बू और भाई को, तो आपकी लाइबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, कम हो गई। नेक्स्ट टाइम आपने फ्यूचर में उनको पे नहीं करना, आपने पे कर दिया। इसको थोड़ा सा पर्सनली लें, अपने ऊपर लें कि अगर इट हैपन्स टू मी व्हाट वुड आई डू, इफ इट हैपन्स टू मी तो व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूंगा उसके साथ। तो फिर ये थोड़ा सा क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अकाउंटिंग में हर चीज आप अपने ऊपर लें कि ये मेरे साथ हो रहा है, मैं इसको कर रहा हूँ, तो फिर आपको पिक्चर जो है क्वाइट क्लियर हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। आप थोड़ा सा
थोड़ा सा हम जो है एक इसके अंदर ट्विस्ट डाल रहे हैं, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, और मुझे बताइएगा कि व्हाट इज हैपनिंग इन द लास्ट एक्टिविटी। जी, बॉट स्टॉक, स्टॉक समझते हैं ना आप? आपकी जो गुड्स हैं वो आपने बाय की हैं, गुड्स आपने बाय की हैं। अब मुझे बताइए कि क्या आपको इफेक्ट नजर आ रहा है? सर पहले तो एक मिनट सोचने दें। शाबाश शाबाश। हमने गुड्स खरीदे तो सर उसमें ये तो एसेट में आएगा क्योंकि हमने गुड्स खरीदे हैं। ठीक है, प्लस शाबाश शाबाश। एसेट का प्लस ये हो गया, और लाइबिलिटी तो हमने कुछ किया नहीं है तो नॉट इफेक्ट आएगा। ठीक है, ये तो मैं मान लेता हूँ कि इसके अंदर हमने कुछ किया ही नहीं तो नो इफेक्ट आएगा, बिल्कुल सही है, राइट। और कैपिटल सी भी में प्लस आइएगा, होगा। कैपिटल प्लस हो जाएगा। जी सर। ओके, अब आपका अनफॉर्चुनेटली नो बॉक्स, नो आंसर इज करेक्ट। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है इसके अंदर, ठीक है, वो आप देखिएगा क्या हो रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने स्टॉक खरीदी, मुझे बताइए स्टॉक क्या है अगर आपने थ्योरी को पढ़ा है तो? सर स्टॉक स्टॉक ये किससे हम किसी स्टॉक किससे बिलोंग करता है? 5 अकाउंट में से मुझे बता दें, 5 अकाउंट में से किससे बिलोंग करता है स्टॉक? स्टॉक आपका बिलोंग करता है एसेट से, स्टॉक बिलोंग करता है आपका एसेट से। आपने जब स्टॉक खरीदा थोड़ी देर के लिए तो आपका एसेट, ये करेक्ट आंसर नहीं है, मैं अभी समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये बढ़ गया, ठीक है। अब जब हमने ये खरीदा तो इधर हमने कैश खरीदा होगा, तो हमारा एक स्टॉक स्टॉक जो कि एसेट है वो इन हो रहा है, बढ़ रहा है, और कैश है तो एक जा रहा है, तो क्या हुआ ऑल टुगेदर? अच्छा सर ये अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें तीनों ही ना आते हो। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके, देखें इसको एक कलेक्टिवली क्या नाम देंगे आप? पेन, मार्कर एंड पेंसिल, और इसको हम ले लेते हैं इरेजर, ठीक है, इसको हम डस्टर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो आप इसको कलेक्टिवली क्या नाम देंगे? इसको स्टेशनरी, हम वैसे तो पेन शाबाश, कहेंगे। वेरी गुड, स्टेशनरी, एक्सीलेंट, योर आंसर इज करेक्ट। अब मुझे बताइए कितने नंबर ऑफ स्टेशनरी कितनी है आपके पास? नंबर ऑफ स्टेशनरी बताइए, लुक एट माय हैंड, नंबर ऑफ स्टेशनरी बताइए कितनी है मेरी? 4। शाबाश, एक्सीलेंट, 4, ठीक है। अब हम ये कर रहे हैं कि ये हमारा पेन हमने यहाँ से ड्रॉप किया, और इसकी जगह पे मैं एक और मार्कर लेकर आ गया। नंबर ऑफ स्टेशनरी में क्या फर्क पड़ा? ये सर दो चीजें सेम हो गई। सेम हो गया, 4 4, तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ ना? इफेक्ट हुआ। नो इफेक्ट। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टेशनरी अभी आपके पास 4 हैं, पेन, मार्कर, पेंसिल, पेंसिल और डस्टर। इरेजर, ठीक है, 4 है नंबर ऑफ स्टेशनरी। इस स्टेशनरी को एक पेन को मैंने ड्रॉप किया और उसकी जगह पे मैं मार्कर लेकर आ गया, तो नंबर ऑफ स्टेशनरी में
मेरा कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, अब कम टू दिस पॉइंट, जब आप स्टॉक ले रहे हैं तो स्टॉक इज योर एसेट, स्टॉक इज योर एसेट। एक स्टॉक आपका आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इसकी जगह पे या तो आपने कैश दिया, कम हो गया, सेम चीज आ गई, या आपने क्रेडिट लिया, ठीक है, तो फिर आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। तो यहाँ पे हम तो कुछ कह ही नहीं रहे ना आपसे, हम तो ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ जो है आपका स्टॉक खरीदा, तो एक एसेट कैश गया और एक एसेट आपका इंक्रीज हो गया, तो नंबर ऑफ एसेट में कोई फर्क नहीं पड़ा, नो इफेक्ट। लाइबिलिटी तो आपकी इन्वॉल्व हुई ही नहीं है, लाइबिलिटी इन्वॉल्व हुई ही नहीं है, कैपिटल आपका इन्वॉल्व नहीं हुआ। इस वाले को जरा सा मैं आपको दे रहा हूँ, टाइम भी हमारा कम हो रहा है, इसको जरा समझ लें और मुझे थोड़ा सा बताएं दोबारा से कि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है आपका, अच्छी तरह देख लें और जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है उसको भी समझें। अगर मैं चाहूँ तो इसको और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, लेकिन इस तरह बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन आता नहीं है। अब बिल्कुल क्लियर हो गया, लेकिन ऐसे क्लियर आता नहीं है। बॉट स्टॉक फॉर कैश, कैश गया, स्टॉक आया, कैश बिलोंग्स टू एसेट, स्टॉक बिलोंग्स टू एसेट। मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी स्टेशनरी की, नंबर ऑफ स्टेशनरी में कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारा नंबर ऑफ एसेट्स में कोई नहीं फर्क पड़ा, तो नो इफेक्ट, लाइबिलिटी इज नॉट इन्वॉल्व, कैपिटल इज नॉट इन्वॉल्व। ये है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन के इफेक्ट्स। होपफुली इंशाल्लाह आप जब इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड मोर पॉइंट्स, और भी चीज़ें इसकी समझ में आ जाएंगी आपकी। और आपने रिकॉर्डिंग ज़रूर देखनी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप सीआईई के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी से अगर आपने इसके ऊपर वर्किंग करनी शुरू कर दी तो आप बिल्कुल जो है मुतमईन हो जाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 अब मैं कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, टाइम इज रनिंग आउट। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें। जवाब